हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पर्ल का पार्ट 2 है। इसमें हम पर्ल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट फीचर इज द पर्ल हैज अ सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंटैक्सेस एंड जैसे हम सी प्लस प्लस में बात करें तो सी प्लस प्लस में हमारे पास अब प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंटैक्सेस हैं, बट इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ओप्स के हमारे पास सिंटैक्सेस होंगे वो बहुत सिंपल होंगे and easy to use होंगे. Second, it is the Perl is easily extensible, which means it supports 20,000 open source modules. Open source means it is free to use and freely available source modules which you can extend, modify and use according to the situations or the applications you want to build. The third is the support. It supports Unicode. Unicode is a kind of a character set informations that comes with the every Perl script, and you can use it at the top of the any script. The fourth one is it includes the powerful tools to process text to make it compatible with the markup languages like HTML and XML. And the next is it supports third-party databases. Third-party databases are the Oracle, MySQL, and the many others. And the next is it has a embeddable scenario. So it uses the embeddable script that can be embedded in any other system. Such as you can embed the Perl script in a web servers or in a database servers or in any other programming language. Open source softwares. This Perl language is an open source software, which means it is freely available on the websites, and if there is no license for installing or downloading this language that is called Perl. So its licensed is under GNU, which is free of cost. The next is the many frameworks are written in Perl. So I said before this Perl is a cross-platform environment, and you can write a code for creating any kind of frameworks or IDE using Perl. So it handles encrypted web data. What it means, encrypted web data includes e-commerce transactions. So you can also write the security code with this because it is easy to use and it is interpreted language. The next is the cross-platform. It supports multiple platforms, that's why it is called a cross-platform language. The next is it offers a regular expressions engine, so which is able to transform any type of text. So these are the features of Perl. The next comes to the Perl basic syntaxes. So we move to the first syntax. Before moving to the syntaxes of the Perl, I will tell you what softwares you have to install if you want to write Perl. So comes to the installation first. First you have to install a Strawberry Perl from a Perl website mentioned in the description box of this lecture. I will post the link, and from there you can install it. So पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन से दो हमारे पास मैकेनिज्म है if you want to install Perl in your system. तो पहले हम चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ. सो हमें पहले इंस्टॉल करना है Perl, तो हम अपने पहले ब्राउजर की तरफ चलते हैं. सो अगर आपको Perl डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में तो आप Perl सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो. Perl सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड. सपोज मैं विंडोज 7 के लिए यूज करना चाहती हूँ
तो आपकी चॉइस है आप कहाँ से करना चाहते हो। आप पर्ल का यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो पर्ल वेबसाइट है www.perl.organization वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। देखो आपके पास यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो है। आप यहाँ से स्ट्रॉबेरी पर्ल और एक्टिव स्टेट पर्ल आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन है। इसके अलावा मैं आपको बाकी इंस्टॉलेशन लिंक, जो बेस्ट इंस्टॉलेशन जो वेबसाइट्स होंगे जहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने एक्चुअली इसका इंटीग्रेटेड वर्जन इंस्टॉल किया और एक स्ट्रॉबेरी पर्ल किया, ताकि मैं आपको दोनों से बता सकूं कि कैसे हमें पर्ल इंस्टॉल करना है। मैं आपको इंस्टॉलेशन स्टेप तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि इंस्टॉलेशन स्टेप तो इतना टफ नहीं होता, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है सॉफ्टवेयर और ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें मैंने यहाँ पे ये हमारे पास एक आईडीई है पर्ल का, ठीक है। इस पर्ल के आईडीई के थ्रू आप इसमें जीयूआई सपोर्ट ले सकते हैं पर्ल के लिए। और एक है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पर्ल, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरी पर्ल है। ये आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, आप यहाँ पे जब हम यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में यहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी का ये फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर हमारे पास फाइल्स हैं। ये हमारे पास सी पैन है जिसमें सारे लाइब्रेरी होती है, हमारी मॉड्यूल्स होते हैं। ये पर्ल है, हमारे पर्ल के अंदर ये बिन है जहाँ आप अपने सारे प्रोग्राम सेव कर सकते हो पर्ल के रिगार्डिंग। और जो इसका रनिंग एनवायरनमेंट है, अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है पर्ल की फाइल्स तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हो। बट अगर हमें इसकी जगह आईडीई का यूज करना है तो हम यहाँ से पर्ल का आईडी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, ये पर्ल का आईडी यहाँ पे, तो ये हमारे पास पर्ल का आईडी ओपन हो गया। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये जीयूआई फॉर्मेट है जिसमें आप पर्ल के सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अब बेसिक सिंटैक्सेस बताने जा रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हम पर्ल का एडिटर कैसे एक्सेस करते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और फिर हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सो ये हमारे पास है पर्ल इनपुट आउटपुट। अब अगर आपको पर्ल में इनपुट आउटपुट करना है, जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में करते आए हो, तो अगर आपको सी प्लस प्लस में कुछ भी वैल्यू इनपुट आउटपुट करनी थी तो आप क्या यूज करते थे, आप यूज करते थे सी आउट। अगर इनपुट करना होता तो आप यूज करते थे सी इन। इस केस में अगर पर्ल में हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने हैं तो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। अगर आपको आउटपुट फंक्शन यूज करना है तो आप प्रिंट या से यूज कर सकते हो। बट जो ओल्डर वर्जन्स है पर्ल के, वो से फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए जो प्रिंट फंक्शन है वो सारे वर्जन्स पर चलता है। इसलिए आप प्रिंट यूज करो तो वो ज्यादा बेटर है। और नेक्स्ट है आपका वो इनपुट फंक्शन है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम पर्ल में इनपुट करने के लिए, मीन्स अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो जो पर्ल है वो स्टैंडर्ड इनपुट का यूज करता है, जिसको हम स्टैंडर्ड कंसोल भी बोलते हैं। और इसके लिए जो हमारा एब्रिवेटेड फॉर्म है वो STDIN है, विच मीन स्टैंडर्ड इनपुट। सो इसको यूज कैसे करना है, क्या इसके सिंटैक्सेस होंगे, अब हम इसको एडिटर पर यूज कर लेते हैं। तो इसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एडिटर से आपको बता देती हूँ। अब देखो, अगर बेसिक हमें हम इनपुट आउटपुट सिंटैक्सेस के बोले, इन पर्ल। सो पर्ल में अगर हमें इनपुट सिंटैक्स लिखना है, अगर हमें कुछ वैल्यू इनपुट करनी है, इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूजर, तो हमारे पास सिंटेक्स होता है, वो आपको सिंटेक्स ध्यान में होना चाहिए। आपको यहाँ पे देना पड़ेगा वेरिएबल का नेम, उसके बाद आपको इक्वल टू साइन देना है। जैसे आप क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट में वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो जो आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट है वो ये दो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन टैग्स का यूज करता है, और कैपिटल में STD इनका यूज करता है, विच मीन स्टैंडर्ड इनपुट। पर्ल में सेमीकोलन टर्मिनेशन का सिंबल है और विच इज नेसेसरी। अब इसके बाद जैसे वेरिएबल नेम आपने मेंशन कर दिया है, उसके बाद
ये डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएबल है किस टाइप का है, उस हिसाब से आप यहाँ पे डॉलर लगा सकते हो, आप यहाँ पे @ लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दे। इट्स डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल मींस व्हाट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल यू आर यूजिंग। उसके बाद कुछ केसेस में आप यहाँ पर उसका डेक्लेरेशन सिंटेक्स भी लिख सकते हो, जैसे कि माई हो सकता है और आवर हो सकता है। तो उसकी जगह मैं अगर माई आवर ना लिखूं तो मैं यहाँ पे डेक्लेरेशन कीवर्ड से आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, वो आपका कीवर्ड यहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सिंटेक्स है अगर आपको वैल्यू इनपुट लेनी है फ्रॉम यूजर। तो जैसे अगर हमें इनपुट कर रहे हैं, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, यहाँ पे ये एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहती हूँ ए, और उसमें कुछ वैल्यू डालना चाहती हूँ ए, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना है ए, ठीक है। तो अब डेक्लेरेशन कीवर्ड है, अब ये डिपेंड करता है, अगर आप नहीं देना चाहते डेक्लेरेशन सिंटेक्स, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द ऑप्शनल पोर्शन, और ऑप्शनल को मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से बताती हूँ, आपको पता है, ठीक है। फिर ये मैं ऑप्शनल है नहीं लगा रही हूँ, तो मैं डॉलर लगा के मैंने एक वेरिएबल बना दिया ए, एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया stdin विच इज स्टैंडर्ड इनपुट। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ राइटिंग द इनपुट लाइक सी इन, जैसे आप सी इन ए लिखते थे उसकी जगह आपने ये सिंटेक्स लिखना है, उसके बाद सेमीकोलन आना मस्ट है आपका, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है आपके पास। अब हम बोल सकते हैं कि अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना तो एक इसका दूसरा सिंटेक्स भी है, मैं यहाँ पे और करके आपको दूसरा सिंटेक्स बताती हूँ। सिंपल यही चीज होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, अब आपने जो कैपिटल में stdin लिखा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ दो, मतलब यहाँ पे खाली ऐसे छोड़ दो, तो वो भी ये stdin मींस ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल है यही डिनोट करता है कि ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट है, ठीक है। तो अगर आप चाहे ये लिखो विच इज इक्विवेलेंट टू डॉलर ए इज इक्वल्स टू दिस, ओके। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अगर अब हम बात करते हैं आउटपुट की, ठीक है। आउटपुट अगर आपको यूजर से लेना है, अच्छा हमारे प्रिंटिंग के फंक्शंस है, जो प्रिंटिंग फंक्शन है हमारे पास वो हमारे पास है, फर्स्ट इज द प्रिंट एंड द सेकेंड वन इज द से। These two functions are used for printing और output in a Perl। तो इसका अगर मैं सिंटेक्स आपको बोलूं कि सिंटेक्स क्या होगा प्रिंट का, तो उसके लिए आपको लिखना है प्रिंट और उसके बाद आपने डबल कोट्स में जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, इस तरह से आप इसका सिंटेक्स मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप या तो लिखो मैसेज या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल का नेम। तो ये आपके पास सिंटेक्स है। अगर यही चीज अगर आपको से के केस में लिखनी है सिंटेक्स, तो जो से का सिंटेक्स है वो भी सिमिलर ही है। जो सिंटेक्स होगा वो होगा आपने से लिखना है, उसके बाद आपको वही मैसेज आप लिख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम भी मेंशन कर सकते हो। तो सेम सिंटेक्स है, बस डिफरेंस क्या है कि जो अगर जो प्रिंट है वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन नहीं लेके आता। सपोज आपने एक मैसेज लिखा है हेलो, तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ। सपोज आपने लिखा है प्रिंट हेलो, और अगर आपको हेलो प्रीति लिखना है सपोज, तो हेलो लिखा, उसके बाद अगर आपको प्रीति नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू लाइन का सिंबल लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको प्रीति लिखना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ से आपने क्या करना है, से लिखना है और आप जस्ट यहाँ पे लिख दोगे हेलो, ओके, हेलो लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद आप से लिखो और यहाँ पे लिख लो प्रीति, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर आप यही सेम चीज अगर आप यहाँ लिखोगे तो आपको बीच में नेक्स्ट लाइन का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली से है वो नेक्स्ट लाइन क्रिएट करता है। अब क्या होता है, अगर आपको से यूज करना है तो आपको इसके साथ अपने पर्ल का वर्जन भी लिखना पड़ेगा। अगर आप वर्जन नहीं लिखोगे तो से कुछ केसेस में वर्क नहीं करता, ओल्डर वर्जन्स में नहीं काम करता, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सिंटेक्सेस पे काम करेंगे और कैसे हमें आईडीई में काम करना है
ये भी देखेंगे। थैंक यू।